Hello students. In the last video we have seen graphical form of the linear equation in two variables. Different types of graphs were there, and by using those linear equations, how to draw a graph, how to identify the solutions, how to identify the consistent, that graph is consistent or inconsistent. So all other things we have discussed in the last video. Now in this video I am going to start the next point from this lesson. I have written here title. Maybe you are observe, if you will see carefully, then you will come to know that. Look here properly, you will see that. Okay, look here. Algebraic methods of solving a pair of linear equations. Now before that we have seen the graphical method. Now we will see the algebraic methods of solving a pair of linear equations, means linear equations in two variables. In that first method, title is also I have written here, substitution method. As you know that substitution, that word substitution means what? Here in case of linear equation, that substitution word, that substitution method we are going to use, means at the place of or on the place of variables, means on the place of variables we are going to substitute another variable in this method. That's why this method is known as substitution method. Without wasting time, I am going to start. I will take here one example. Let me first of all tell you which type of instructions are given, which type of questions are asked regarding to this method, substitution method. Generally the instruction is given like that: solve the following pair of equations by substitution method. Solve the following pair of equations by substitution method. ऐसा क्वेश्चन, ऐसी इंस्ट्रक्शन इसमें दी जाती है और जनरली एग्जाम्पल पूछा जाता है. Okay, first of all I will consider here one example, one pair of linear equation. For your better understanding, you will come to know that how to solve it. I am going to start. Look here. Okay, suppose I have taken here first example, 7x minus 15y is equal to 2 and x plus 2y is equal to 3. Look here, and question is that I have considered here two equations, two linear pair of equations. First one is the 7x minus 15y is equal to 2 and second one is the x plus 2y is equal to 3. Question कैसा पूछा जाता है? Solve the following pair of equations by substitution method. Okay, then what is meant by substitution method? How to solve examples by using this method? Those all other things we are going to discuss now. Listen carefully everyone, you will come to know that. Okay, I am going to start. Look here, solution. First of all, given. Look here, what is given? If you will see, then 7x minus 15y is equal to 2. We will consider this is the first equation, and second one, x plus 2y is equal to 3. We will consider this is the second equation. Okay, look here what I did. Simply I have written both equations and I nominated first equation as the this given equation. Firstly, that is the first equation, second one, that is the second equation. Okay, now look here. Now the next thing is that we have to represent, we have to convert one of the other equation from those two, or we can say in a different way, we pick either of the equations, and write one variable. We pick either of the equations and write one variable in terms of the other. Here from those two equations we have to pick up one equation and we have to write that equation, the equation which is picked by us, that equation we have to write in one variable. Write one variable from that equation, we have to write one variable in the terms of other. Are you getting what I said? Once again I repeat, here we are going to pick one equation from those two and write one variable in the terms of other. Means here we are going to represent any one variable in the terms of other. In the graphical method also we have represented one variable in the terms of other. For example, I will remind that point. When we have drawn a graph, that time I have shown you table. You know that table. In the table, while forming table, we are converting the given equation in the form of x or in the form of y. Same thing we are going to follow over here. Any one of these two equation we have to convert in the form of x, we have to convert in the form of y. दोनों में से कौन सा भी एक इक्वेशन ले लो और वो x और y में कन्वर्ट करो. जनरली जिसका कोएफिशिएंट, जिस वेरिएबल का कोएफिशिएंट लो है, वेरी लोएस्ट है, वो वेरिएबल तुम सिलेक्ट करो फॉर कन्वर्टिंग द
for converting in the form of one term. Okay, for example, look here. Here if you will see carefully, then you will come to know that in the first equation 7x minus 15y is equal to 2, and in the second equation x plus 2y is equal to 3. If you will observe, then in the first equation the variable is x and y, both variables are here, but the coefficient of variable x is 7 and the coefficient of y is what, 15. And in the second equation coefficient of x is 1 and the coefficient of y is what, 2. Are you getting? Okay, then which is the lowest coefficient? If you will observe, then in the second equation the variable x is having lowest coefficient, that is 1. That's why what we will do, and you also do like that, who is having very less coefficient, the variable which is having very less coefficient, that variable you select for converting into the one term, or that variable you select for representing in the other form. Means now we have decided that, मेरे बोलने का मतलब ये था, you have to represent this first equation or second equation in the form of x or in the form of y. दोनों में से कौन सा भी इक्वेशन x और y में कन्वर्ट करो. कन्वर्ट करते वक्त जिसका कोएफिशिएंट लेस है उसको ही क्या करो, सिलेक्ट करो. अभी देखोगे तो सेकेंड इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट लेस है, तो हमें क्या करना है, सेकेंड इक्वेशन ही सिलेक्ट करना है. ओके, देन लिसन हियर हाउ टू सॉल्व इट. आई एम गोइंग टू शो यू. लुक हियर, कंसीडर व्हाट वी हैव टू राइट. कंसीडर, मैं अभी समझने के लिए लिख रहा हूँ, जो नोट्स में लिखना है और कैसे सॉल्व फॉर्मेट में सॉल्व करना है वो फॉर्मेट मैंने अच्छी तरह से लिखा है एक सेपरेट पेज पे. वो भी मैं सेपरेट, मैं जो बोल रहा हूँ वो भी उसमें मैंने लिखा है, वो बाद में दे दूंगा. बट नाउ यू हैव टू लिसन इट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड. ऐसे भी अगर सॉल्व कर रहे हो एग्जाम्पल तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है. कंसीडर इक्वेशन 2. कंसीडर इक्वेशन 2. अभी x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, ये इक्वेशन 2 है, हमने इसको कंसिडर किया. एंड नाउ वी हैव डिसाइडेड वी वांट टू कन्वर्ट दैट इन द फॉर्म ऑफ x. तो x फॉर्म में कन्वर्ट करो और x में रिप्रेजेंट करो. x इज इक्वल टू, ये प्लस 2y उस साइड को जाएगा, ऑलरेडी इधर 3 है तो 3 माइनस, ये प्लस है तो माइनस 2y, इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 3. इसको बोलेंगे क्या, इक्वेशन नंबर 3. आर यू गेटिंग? यही बोल रहा था मैं. इसके पहले जो भी मैंने एक्सप्लेनेशन दिया इसका मतलब यही है, एक सिलेक्ट करो और कन्वर्ट करो. इन द फॉर्म ऑफ एक्स भी कन्वर्ट कर सकते हो, इन द फॉर्म ऑफ वाई भी कन्वर्ट कर सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है. नाउ व्हाट टू डू, नाउ दिस कन्वर्टेड द वैल्यू विच वी गॉट हियर, दैट वैल्यू यू ट्राई टू यू मस्ट सब्सटीट्यूट और यू मस्ट पुट इन द इक्वेशन 1. तो अब बोलोगे इक्वेशन 2 भी है इधर, तो 1 में ही क्यों रखें. हमने सेकेंड इक्वेशन यूज किया है किसके लिए, फॉर सब्सटीट्यूशन पर्पज, फॉर कन्वर्टिंग पर्पज, फॉर रिप्रेजेंटेशन पर्पज. तो रिमेनिंग इक्वेशन 1 बचता है, उसमें वो पुट करना है. ओके, तो कैसे लिखना है देखो, सब्सटीट्यूट डायरेक्ट लिखोगे तो भी चलेगा, नहीं तो ऐसा भी लिखोगे तो भी चलेगा. सब्सटीट्यूट अब वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन 1, ऐसा लिखोगे तो भी करेक्ट है और डायरेक्ट लिखोगे भी तो भी करेक्ट है. सब्सटीट्यूट एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस 2y इन इक्वेशन 1 वी गेट. ओके, अभी क्या मिलेगा देखो, देयरफॉर इक्वेशन 1 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2 है. इसमें हमने क्या लिखा है अभी, इंस्टेड ऑफ x वी आर गोइंग टू राइट 3 माइनस 2y, राइट ओवर हियर. इधर x है तो इधर लिखो, देयरफॉर 7 इन ब्रैकेट 3 माइनस 2y माइनस 15y इज इक्वल टू 2. देयरफॉर 7 इंटू 3 21 माइनस 7 इंटू 2 14y माइनस 15y इज इक्वल टू 2. आर यू गेटिंग? सिंपली मैंने क्या किया, इधर मल्टीप्लीकेशन किया, 7 से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया है. 7 इंटू 3 21 प्लस इंटू माइनस माइनस 7 इंटू 2 14 y है तो y. ओके, और ये 15y एज इट इज हमने कॉपी किए. देयरफॉर इधर देखो, माइनस माइनस प्लस नहीं होगा, सेम साइड एडिशन होगा. माइनस 14 माइनस 15 माइनस 29y इज इक्वल टू, इस 21 को ट्रांसफर करेंगे 2, ये प्लस है तो इधर जाके क्या होगा, इधर प्लस है तो इधर जाके माइनस होगा 21. देयरफॉर माइनस 29y इज इक्वल टू माइनस 19y. दोनों साइड को भी माइनस है तो माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, y इज इक्वल टू 19 डिवाइडेड बाय 29.
बचा क्या, y इज इक्वल टू 19 डिवाइडेड बाय 29. नाउ वी गॉट y इज इक्वल टू 19 डिवाइडेड बाय 29. अभी ये y की वैल्यू तुम्हारे पास अभी 3 ऑप्शन है, इक्वेशन 1, 2 एंड 3. इनमें से किसी भी एक में ये y की वैल्यू क्या करनी है, पुट करनी है. जनरली जो तीसरा इक्वेशन बनेगा उसमें ही पुट करने की कोशिश करो, क्योंकि ऑलरेडी जो वैल्यू हमें मिलती है उसके अपोजिट होती है. अभी इधर x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो ऑलरेडी अपोजिट यानी कि y की वैल्यू हमें इधर मिल चुकी है. ये y की वैल्यू अगर हम इधर पुट करेंगे तो ऑटोमेटिकली x की वैल्यू क्या हो जाएगी, मिल जाएगी. ओके, नाउ व्हाट यू विल डू, पुट अबो वैल्यू, डायरेक्ट लिखोगे भी तो चलेगा, अबो वैल्यू इन इक्वेशन 3. आई टोल्ड यू इन विच वी हैव टू पुट ऑलवेज. ऐसा ही करो, इधर भी पुट करोगे तो भी चलेगा, लेकिन ये लंबा हो जाएगा, लेंदी होता है, इधर सिंपल हो जाता है. ओके, पुट इन 3 वी गेट. अभी इक्वेशन 3 क्या है देखो, x इज इक्वल टू 3 माइनस 2y. देयरफॉर x इज इक्वल टू 3 माइनस 2 इंटू y की वैल्यू क्या है देखो, 19 डिवाइडेड बाय 29. y की वैल्यू क्या मिली है, 19 डिवाइडेड बाय 29. अभी सॉल्व करेंगे क्या आता है देखो इधर. देयरफॉर x इज इक्वल टू 3 माइनस 2 इंटू 19 क्या होगा, 2 इंटू 19 होगा, क्योंकि 2 का डिनोमिनेटर 1 है, इधर लिखा नहीं है हमने, लेकिन 2 का डिनोमिनेटर क्या है, 1 है. तो 2 इंटू 19 होगा. 2 से 29 को भी डिवाइड किया जा सकता है, बट 29 डायरेक्ट डिवाइड नहीं होगा इधर, और हमें आंसर जो मिलेगा डेसिमल पॉइंट में मिलेगा, तो अनडिवाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है. तो क्या करेंगे देखो इधर, 2 इंटू 19 38 डिवाइडेड बाय 29. इधर लिखता हूँ देखो, देयरफॉर x इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 29 इंटू 3 कितना आता है, 29 इंटू 3 87, माइनस ये कितना है 38 डिवाइडेड बाय 29, डिवाइड बाय क्या होगा 29. देयरफॉर x इज इक्वल टू 87 माइनस 38. 87 माइनस 38 अगर करोगे तो आंसर आएगा 49 डिवाइडेड बाय 29. ओके, तो डायरेक्ट फाइनल में, अभी फाइनल में आंसर क्या लिखना है, द वैल्यू ऑफ x इज 49 डिवाइडेड बाय 29 एंड द वैल्यू ऑफ y इज व्हाट, 19 डिवाइडेड बाय 29. इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड. आर यू गेटिंग? हियर आई हैव टेकन वन एग्जांपल फॉर योर अंडरस्टैंडिंग पर्पस. इसमें वो वर्ड प्रॉब्लम्स भी दे सकते हैं, जनरली वर्ड प्रॉब्लम्स भी उन्होंने दिए हैं, तो वर्ड प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करना है वो भी हम देखेंगे अभी. बट उसके पहले ये एग्जांपल ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये समझने की कोशिश करो. मैंने क्या किया पहले, आई हैव कंसिडर बोथ इक्वेशंस, देन आई हैव कन्वर्टेड, फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव कंसिडर बोथ इक्वेशंस विच आर गिवन टू अस, then I have considered the second equation and I have converted into the form of, or I have represented in the form of x. उसको मैंने बोला थर्ड इक्वेशन, और वो थर्ड इक्वेशन मैंने इक्वेशन 1 में रख दिया. देन आफ्टर दैट आई गॉट हियर वैल्यू ऑफ y, एंड जो वैल्यू मिली, मेरे पास 3 ऑप्शन थे, वी आर हैविंग 3 ऑप्शन, आई टोल्ड यू 1, 2 एंड 3. इनमें से किसी भी एक में रखना है. आई हैव केप्ट इनटू द 3 एंड आई गॉट आंसर 49 डिवाइडेड बाय 29. ओके, दिस इज द फर्स्ट एग्जाम्पल. सेकेंड एग्जाम्पल ऑल्सो आई विल शो हियर. वर्ड प्रॉब्लम मैंने तुमको अभी बताया, इधर लिख के रखा है मैंने, टाइम से हो जाएगा अपना. उसमें से देखो इधर क्या है. सेकेंड क्वेश्चन, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब ने उसकी डॉटर को बोला, 7 years ago I was 7 times as old as you. 7 years ago I was 7 times as old as you. Where then? Also 3 years from now. What is said over here? The first condition क्या है? 7 years ago I was 7 times as old as you. Where then? Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. You will be. Then find their ages. ओके, जनरली ऐसे एग्जाम्पल ग्राफ में भी हमने देखे हैं. लास्ट टाइम जो ग्राफ तुमने देखा है लास्ट वीडियो में, उसमें जो लास्ट एग्जाम्पल था वो भी इस टाइप का ही था. ये एग्जाम्पल कैसे सॉल्व करते हैं हम, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर कन्वर्टिंग दोज इक्वेशन इन द linear equation in 2 variables, means that given information in the linear equation in 2 variables, and then we are solving it. Same thing we have to follow over here. First of all we want to find out here their ages. Their ages means what, age of Aftab and his daughter.
Then we will consider first of all age of Aftab and his daughter. Okay, now we will start this example. Look here. तो पहले कैसे करना है, पहले we have to consider the age of Aftab and his daughter, and then we have to prepare, then we have to form by using those two conditions. Here first condition is there and here second condition is there. By using those two conditions we have to form linear equations in two variables, and then we have to solve those equations by using substitution method. Okay, तो कैसे solve करना है देखो इधर, I will show you. Let us consider, we will consider here, suppose S and T. S and T. What is this S and T? Suppose I have considered here S is the age. ये समझने के लिए मैं लिख रहा हूँ, नोट्स में कैसे लिखना बाद में दे दूंगा, पहले समझने की कोशिश करो. S is the age of Aftab and T is the age of daughter. What I said, suppose I have considered S is the age of Aftab and T is the age of daughter. Then by using the first condition, by first condition, पहली कंडीशन क्या है देखो, 7 years ago, यानी कि किसका एज, 7 years ago आफ्ताब सेड. आफ्ताब का एज क्या है देखो इधर मैं लिखता हूँ S. तो 7 years ago यानी कि इसमें से 7 माइनस करने पड़ेंगे. समझ में आ रहा है मैंने क्या लिखा है, आफ्ताब का एज है S, तो 7 years ago minus 7 is equal to I was 7 times as old as you when then. 7 times यानी कि मल्टीप्लाई as old as, पिछले टाइम डॉटर का एज कितना था T, तो T में से माइनस कितने करने पड़ेंगे, 7. फिर से एक्सप्लेन करता हूँ देखो. आफ्ताब बोला, क्या बोला आफ्ताब, 7 years ago जो मेरा एज था वो 7 टाइम्स तुम्हारे एज में से -7 करने के बाद आता था. आर यू गेटिंग? तो अभी ये सॉल्व करना है और इक्वेशन हमें प्रिपेयर करना है. सॉल्व करो. S minus 7 is equal to 7 into T, 7T minus प्लस इंटू माइनस, माइनस 7 into 7 49. कन्वर्ट करो अभी. S ये 7T है, इधर आके माइनस होगा तो -70 इज इक्वल टू, ये ट्रांसफर करो, -49, ये माइनस है तो इधर जाके प्लस होगा, +7. S minus 70 इज इक्वल टू 49 में से 7 गए, 42 रह गए और माइनस साइन ग्रेटर नंबर का है तो इसलिए -42. तो इधर क्या होगा, S minus 70 इज, ये इधर आ गया तो +42 इज इक्वल टू 0. इक्वेशन नंबर 1. डू यू अंडरस्टैंड? ये हो गया इक्वेशन नंबर 1. I have considered condition and by using that condition I solved, I got here equation number 1. Then I will show, I will divide this page in the two parts for our understanding purpose. By इधर लिखता हूँ देखो, second condition. What is second condition? 3 years from now. 3 years from now. पहले देखो आफ्ताब का एज S. 3 years from now. एगो यानी कि पीछे जाना होता है तो माइनस करना है, आगे जाना है तो प्लस करना है, तो S + 3. ओके, आई शाल बी 3 टाइम्स, 3 टाइम्स यानी कि 3 इंटू योर एज यानी कि T + 3. 3 साल अगर हम आफ्ताब के एज में ऐड कर रहे हैं तो डॉटर के एज में भी ऐड करेंगे और 3 टाइम्स उसका कन्वर्ट करना है. यानी कि इक्वेशन हमें मिला इधर S + 3 इज इक्वल टू 3 इन ब्रैकेट T + 3. सॉल्व करो अभी. S + 3 इज इक्वल टू 3T + 3 इंटू 3 9. S + 3. ओके, अभी क्या करेंगे देखो, डायरेक्ट हम लिखेंगे, कुछ प्रॉब्लम नहीं है. S + 3 तो S इधर लिखेंगे, ये 3T जो प्लस है इधर लाएंगे तो -3T होगा. 9 एज इट इज, ये प्लस है इधर आएंगे तो -3 होंगे, तो S - 3T इज इक्वल टू 6 आएगा. और इक्वेशन अगर कन्वर्ट किया जाए तो S - 3T ये प्लस होके इधर आया तो -6 इज इक्वल टू 0. इसको हम बोलेंगे सेकेंड इक्वेशन. अभी देखो, जनरली 2 equations here we got. First equation is there, second equation is there. Now we have to select one equation for converting purpose, for representing purpose. Now here x and y is not there, here S and T is there. We have to convert first or second equation in the form of S or
t. Okay, we will decide the second equation we will take and we will convert that in the form of s. Consider equation 2. ओके, इसको हम s में कन्वर्ट करेंगे तो 3t माइनस 3t उस साइड को जाएगा, -6 भी RHS में जाएगा, तो दोनों भी प्लस हो जाएंगे, तो इक्वेशन ऐसा आएगा s इज इक्वल टू 3t प्लस 6. s इज इक्वल टू 3t प्लस 6. अभी इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 3. जैसे हमने पहले एग्जाम्पल में सॉल्व किया वही सेम है, पहला इक्वेशन दूसरा इक्वेशन, दूसरे इक्वेशन को हमने कंसिडर किया, उसमें से तीसरा इक्वेशन निकाला. तीसरा इक्वेशन कैसे निकाला? वी हैव रिप्रेजेंटेड दैट सेकंड इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ s. नाउ वी हैव टू पुट दिस वैल्यू इन द फर्स्ट इक्वेशन. पुट above value in equation 1. इन इक्वेशन 1. अभी इसमें पुट करो. इक्वेशन क्या है देखो, देयरफॉर s माइनस 7t प्लस 42 इज इक्वल टू 0. अभी s की जगह पे हम क्या लिखेंगे? 3t प्लस 6. व्हाट वी आर गोइंग टू राइट? 3t प्लस 6. राइट हियर, देयरफॉर 3t प्लस 6 माइनस 7t प्लस 42 इज इक्वल टू 0. अब इधर देखो 3t माइनस 7, दोनों साइन अपोजिट है तो सब्ट्रैक्शन होगा. 7 में से 3 गए 4 हो गए, ग्रेटर नंबर है 7 तो माइनस 4t. ये ट्रांसफर करो उस साइड को, क्या होता है देखो, ये देखो अभी ये 42 है, आर यू गेटिंग? इधर 42 है और ये प्लस 6 है, तो दोनों पे उधर ट्रांसफर किया तो माइनस 42 माइनस 6 माइनस 4t इज इक्वल टू माइनस 48. आर यू गेटिंग? दोनों साइड का माइनस साइन कैंसिल हो गया, तो t इज इक्वल टू 48 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज इक्वल टू 12. कैसे 12? 4 1s are 4, 4 2s are 12. डू यू अंडरस्टैंड? नाउ लुक हियर, नाउ वी गॉट हियर वैल्यू ऑफ t. अभी हमें s की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये t की वैल्यू हम क्या करेंगे इस थर्ड इक्वेशन में, जनरली मैंने बोला है थर्ड में ही पुट करो. पुट अबोव वैल्यू इन इक्वेशन 3. इक्वेशन 3 क्या है देखो, s इज इक्वल टू 3t प्लस 6. ये t की वैल्यू इधर पुट करो, s इज इक्वल टू 3 इंटू 12 प्लस 6. s इज इक्वल टू 3 इंटू 12 कितना होगा? 36 प्लस 6. देयरफॉर s इज इक्वल टू 42. s इज इक्वल टू कितना आया? 42. यानी कि s मीन्स व्हाट? लुक हियर, s मीन्स एज ऑफ आफ्ताब, आफ्ताब एज, और t मीन्स डॉटर एज. तो हमें डॉटर का एज कितना मिला? 12 एंड आफ्ताब का एज कितना मिला? 42. डू यू अंडरस्टैंड? ऐसे हमें फाइंड आउट करना है. नोट्स के लिए मैं अभी पेज दिखा दूंगा. लिसन हियर, मैंने क्या दिखाया है पहले, दोनों इक्वेशंस है. पॉइंट आज हमने कौन सा स्टार्ट किया देखो इधर, ये पॉइंट हमने आज स्टार्ट किया सब्स्टिट्यूशन मेथड, वही इक्वेशन है और सिंपली हमने ऐसे सॉल्व किया. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव कंसिडर्ड, देन वी हैव रिप्रेजेंटेड, देन वी हैव सॉल्व्ड, देन वी गॉट वैल्यू ऑफ y, then we have kept that value of y in the equation 3, then we got value of x, and finally we have to write here x is equal to 49 divided by 29 and y is equal to 19 divided by 29. ये था पहला क्वेश्चन. और अभी दूसरा क्वेश्चन जो मैंने अभी अभी सॉल्व करके दिखाया वो इधर है, देखो इधर से ध्यान से देखो. आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, पूरा का पूरा एग्जाम्पल इधर दिख रहा है. ओके, तो हमने कंसिडर किया, लेट अस कंसिडर s एंड t विद द एजेस. इधर मैंने पूरा डिटेल लिखा है, उधर मैंने ओरली बताया था. बाद में फर्स्ट कंडीशन, सेकेंड कंडीशन, दो इक्वेशंस मिले, हमने पुट किया, बाद में s की वैल्यू पुट की, बाद में हमको t की वैल्यू मिली, बाद में इधर भी मैं दो पार्ट्स करके लिखा है, बाद में हमने s कितना मिला? 42. तो फाइनल आंसर ऐसे लिखना है,
The ages of Aftab and his daughter are 42 and 12 years respectively. Okay, ये है हमारी substitution method. Like that examples are there, you try to solve in the exercise. Like that examples are in the exercise, you try to solve. I hope so you got idea about substitution. Thank you.